बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। आज एक बार फिर हम एक बहुत एक्साइटिंग शो के साथ हाजिर हैं, थ्री लैंग्वेजेस विद वसीम। इस शो का पर्पस आप सब लोगों को पता है। हम हर बार एक सरप्राइज लैंग्वेजेस के साथ, सरप्राइज होस्ट और सरप्राइज गेस्ट के साथ यहाँ आते हैं और इस शो का पर्पस लैंग्वेज बैरियर को रिमूव करना। यहाँ पर वो तमाम फाउंडर जो कि एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, लेकिन वहां एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होते हैं, तो यूनिटी के लिए हमने ये शो शुरू किया है। और हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद वसीम अनवर, आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। वी आर येट बैक अगेन विद एन एक्साइटिंग शो, थ्री लैंग्वेजेस विद वसीम। द पर्पस ऑफ दिस शो, remove the language barrier. Today I would like to call our first host, Mr. Musharraf Hussain. Please introduce yourself and which language you are representing. Tell us. Thank you. Assalamu alaikum. Very good evening, everyone. Myself, Musharraf Hussain. I'm belong from India, and I'm representing Bengali language in India. There's one very useful language. So, and Wasim has organized this one. So, thank you very much, Wasim, for inviting me as a host. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Musharraf. Uh, our next host is from Pakistan. I would like to call Mr. Muhammad Arshan. He's from Rahim Yar Khan, Pakistan. Hello, Muhammad Arshan. How are you? Today, which language? Hello, everyone. Assalamu alaikum. I am Muhammad Arshad from Pakistan. District name is Rahim Yar Khan. And I present today language Saraiki. And thank you, Wasim Saab, to giving me opportunity to share my views, my thoughts regarding OnPassive company. So thank you very much. Over to Mr. Wasim. Thank you very much. Thank you, Arshad Saab. I would like to call our next host. She's from India, Mrs. Yogini Bhoer. Hello, Yogini ji. How are you? Salam alaikum. Good evening, good morning, good afternoon, Wasim. Thank you so much for inviting me on this platform for three languages from Wasim. This is Yogini Boy from India. I would like to inform, I'm going to represent the Marathi language, which is specifically from Maharashtra. Thank you very much. Thank you very much. Please, I would like to call Mr. Muhammad Ashraf. Please start this show and introduce yourself and continue the show and start the questions. Hello, Musharraf brother. অনেক অনেক ধন্যবাদ ওয়াসিম স্যার আপনার। আর আমার যে আজকে গেস্ট আছে, সেই গেস্ট হচ্ছে শুভেন্দু সরকার। স্যার প্লিজ আপনি আসুন, আপনার নাম, আপনার এটা ডিটেল একটু বলুন প্লিজ স্যার। ওয়েলকাম। আমি শুভেন্দু সরকার, নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট বেথুয়াডোরির একজন বাসিন্দা। আমি আজকে এখানে আমাদের এখানে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং মোশাররফ স্যার আমাকে এখানে সুযোগ দিয়েছেন, তার জন্য তাকে আমি সালাম করছি, প্রণাম করছি সমস্ত ফাউন্ডারদের। ধন্যবাদ। ওভার টু মোশাররফ স্যার। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নাও it's hand over to Mohammad Arshad sir, please. जी, थैंक यू मुशर्रफ साहब, थैंक यू वसीम साहब। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, तो इनका तारुफ मैं अपनी लैंग्वेज में कराऊंगा, सराइकी लैंग्वेज में। तो जो आज दे जेड़े सारे गेस्ट हैं वो कोई तारुफ दे मोहताज के नहीं। बिलाल साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंदे पेन OnPassive दे नाल। ते बिलाल साहब अपना तारुफ कराओ। Bilal sahab, unmute yourself. Assalamu alaikum.
थैंक यू वसीम साहब, थैंक यू जज़ाकल्लाह। मोहम्मद अरशद साहब बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तो पहले ही दसा दिते ने, बिलाल ना है, मेरा ताल्लुक रहीमिया खान तो है ते असां भी के ही एफर्ट दे नाल तो को ऑन पैसिव को असां ज्वाइन कीते से इन दोस्तों दे नाल। सारे दोस्तों का शुक्रिया, मेहरबानी अरशद साहब। शुक्रिया बिलाल साहब। थैंक यू बिलाल साहब। ओवर टू योगिनी जी। थँक यू अर्षद जी. नमस्कार. जयेंद्र सर आपल्या बरोबरती आहेत ॲज अ गेस्ट म्हणून. सो जयेंद्र सर प्लीज तुमचं इंट्रोडक्शन द्या आणि तुम्ही कुठून आहात ते पण आम्हाला समजू द्या. प्लीज वेलकम. Please unmute yourself. माझा आवाज येतोय का तुम्हाला जयेंद्र सर? येस 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 येस. सगळ्यांना नमस्कार. माझं नाव जयेंद्र गंबे. महाराष्ट्रामधून रायगड डिस्ट्रिक्ट मधून रोह्यामधून आहे मी. रोह्यामधून आहे आणि ऑन पॅसिव्ह मध्ये 2019 पासून आहे. पॉझिटिव्ह योगिनीजी. थँक्यू सो मच. ओव्हर टू मुशर्रफ सर. Unmute yourself. Thank you. স্যার আপনার প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে যে হ্যাঁ স্যার। আপনি যে অন প্যাসিভে এসছেন সে আপনাকে কে নিয়ে এসছে আর আপনি অন প্যাসিভে ফাউন্ডারটাকে কি বুঝতে পারছেন, মানে ফাউন্ডার যে আপনি হয়েছেন সেটা আপনি কি বোঝেন, তো কাইন্ডলি একটু বলুন প্লিজ। আমি প্রথম ফাউন্ডার নিয়েছিলাম 2021 সালে জুলাই মাসে উত্তরাখণ্ড থেকে। আমার আপলাইন ছিল ফণি বিশ্বাস। তারপর সেকেন্ড আপনার মাধ্যমে আমি একটা ফাউন্ডারশিপ নিই এবং আমার বাঙালির যে প্রথম ফাউন্ডার সুশান্ত কর্মকার স্যারের কাছ থেকেও একটা ফাউন্ডার নিই। এই অবস্থায় আমি অন প্যাসিভ নিয়ে এটাই বুঝতে পেরেছি যে এটা একটা ডিভাইন প্ল্যান অনুযায়ী এসছে, ঈশ্বর এবং গডের নির্দেশে, আল্লাহর নির্দেশেই এসছে এবং অ্যাজ স্যার জন্মই নিয়েছেন মানুষের ভালো করার জন্য, এটা আমার বিশ্বাস। সেই অনুযায়ী আমরা যারা অন প্যাসিভ। শোভেন্দু স্যার আপনার, হ্যাঁ আপনাকে করছি কি যে আপনার ফাউন্ডার যে মিনিংটা, মানে যে আপনি ফাউন্ডারশিপটা যে বুঝতে পারছেন, ফাউন্ডারশিপ মানে আপনি কি বুঝছেন যে আপনি ফাউন্ডারশিপটা নিয়েছেন, তো তার জন্য খালি একটু বলুন ফাউন্ডারশিপটা নিয়ে। ফাউন্ডার বলতে এখানে প্রতিষ্ঠাতা বা প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য, যে একটা নতুন কোম্পানি পৃথিবীর বুকে নতুন করে আসছে অর্থনৈতিক চেঞ্জ করার জন্য, তার একজন প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য এবং তার কিছু নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া আছে, অর্থাৎ কিছু শর্ত আছে। সেই শর্তগুলো মেনেই আমরা চলবো অ্যাজ এ গুড ফাউন্ডার হিসেবে। এটাই সবার কাছে আমরা চাইবো, বা আপনারা যারা আপলাইন বা লিডার আছে তারা চায়। আমরা যারা সাধারণ ফাউন্ডার আমরা সেভাবে মানবো, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং সেই অনুযায়ী আমরা নতুন পৃথিবীতে অন প্যাসিভ ফাউন্ডার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করব। ধন্যবাদ। ওভার টু মুশাররফ স্যার। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। নাও ইটস ওভার টু মোহাম্মদ আরশাদ প্লিজ। थैंक यू मुशर्रफ साहब। बिलाल साहब अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें। मेरा आपसे ये राइट। अच्छा बिलाल साहब आपसे थोड़े कने सवाल है तुसा ऑन पैसिव कदा ज्वाइन कीती है ते केड़ी चीज के तो आपको ऑन पैसिव मोटिवेट कीता। मेहरबानी सर अरशद साहब जज़ाकल्ला। असां ऑन पैसिव ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ आई थिंक कि 5 अगस्त ਦੀ डेट है हूँ टाइम को ज्वाइन की है। एक ने पहले देखो ढेर सारी कंपनियां सा कीता से नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले नाल ते नाले ट्रेड वगैरह ते काफ़ी सारा, मतलब कि जिवें तो पता है कि ज़्यादातर स्कैम चलता पिया है ना, कि जी कंपनी भी होंगी वो कमो के अपना हिसाब किताब करने ते निकल गई। तो असला ख्याल बढ़े गया कोई एक कंपनी आवे जी मतलब कि तो एक तो टीम ना बनानी पवे, दूजा एजा सिस्टम हो जिंदे मतलब कम करते इंजॉय करो। तो बल जे टर्म सुने उस एक तो टीम क्या नहीं बनानी, दूजा हिंदे विच एक AI सिस्टम काम करन ना जिनको आर्टिफिशियल आख्या वेंदे। जे टाइम असें इहदे बारे सुनिया
तो बड़ी खुशी थी। मतलब कि हूँ टाइम तो सच्ची दसूं सर, हूँ टाइम तकरीबन 1,94,000 फाउंडर हैं। ते साडे जेडे दोस्त असें को इंट्रोड्यूस करवाया रिजवान भाई ते उन्हां सबको आख्या कि 2 लाख दे दरगाह चल पहुंचे। असा हूँ टाइम बड़ी जल्दी की भाई जल्दी करो, मतलब कि हम 2 लाख पूरा थी वन लगे चल पहुंचे। बहरहाल वो तो टाइम टू टाइम कंपनी का कम चलता रह गया। बहरहाल असा अपना 1,94,000 फाउंडर जेटा मूटम ज्वाइन कर दिया। बहरहाल ही करने को बड़ा असा बड़ा एंजॉय किया से माशाल्लाह। थैंक यू अर्शद साहब। थैंक यू बिलाल साहब। ओवर टू योगनी जी। नमस्कार गंभीर सर, मला जे आपल्याकडे श्रोतागण आहेत त्यांना नक्की तुमच्याबद्दल माहिती आवडेल की तुम्ही ऑन पॅसिव्ह मध्ये कसे जॉईन झालात आणि तुमचं पूर्वीचं ऑन पॅसिव्हच्या अगोदर तुम्ही काय करत होतात किंवा तुमचं त्याच्यामधलं एक्सपर्टीज काय आहे, तर तुमच्याबद्दल आम्हाला माहिती ऐकायला नक्की आवडेल प्लीज. मॅडम तुम्ही बोलल्याप्रमाणे जर बोलायचं झालं तर 3 ऑक्टोबर 2019 मध्ये जॉईनिंग झालं होतं. आणि सगळ्यात महत्वाचा पार्ट म्हणजे ती जॉईनिंग माझ्या मिसेसच्या नावाने होती. मिसेसच्या नावाने जस्सी सरांकडून ती इंदिरा सैनी माझे मित्र आहेत राजस्थानमधून, त्यांच्या थ्रू मला मिळाली. पण त्याचं अपडेशन मला काहीच नव्हतं. कशा पद्धतीमध्ये काय आहे हे काहीच नाही. फक्त माझा मित्र होता इंदिरा सैनी म्हणून. तर त्याने गंभीर सर आप हे करू की यार एक फाउंडरशिप ले लो. तर मी त्यावेळी त्यांना काय आहे ते त्यांनी काहीच सांगितलं, त्यांना काहीच नव्हतं माहिती. फक्त ऍटलिस्ट मी त्यावेळेला 9,086 रुपये दिले त्यांना आणि माझी फाउंडरशिप मी घेतली. पण मेसेजच्या नावाने मी फाउंडरशिप घेतली होती त्यावेळेला. त्याच्यानंतर मग काय झालं की काहीच माहिती नाही, आम्ही सोडून दिला सगळा विषय. आणि एक साधारणतः 6-7 महिन्यानंतर माझे मित्र आहेत रोह्यातून श्रीकांत मोरे म्हणून, एकदम जिवलग मित्र आहेत. त्यांनी मला सांगितलं की सर AI बेस मध्ये एक इंटरनेटची पार्टनरशिप आले, तुम्ही घ्याल का? आणि मी एक संधी घालवली होती 2009 मध्ये बिटकॉइन मध्ये, जे क्रिप्टोमध्ये आपण जाणतो की कुठून कुठपर्यंत पोहोचलं. हे जे ट्रेडिंग करतात क्रिप्टो त्यांना सगळं माहिती आहे. मी सुद्धा ट्रेडिंग गेली 7 ते 8 वर्ष करतोय. तर त्या पद्धतीमध्ये त्यांनी मला सांगितलं की फाउंडरशिप आहे, तुम्ही फाउंडरशिप घ्याल का? मी लगेच घरी या तुम्ही, 2 मिनिटं पण थांबू नका, जसे असाल तसे या तुम्ही. ते JSW मध्ये मॅनेजर होते, ते झटकन घरी आले माझ्या, सर हे बघा हे आहे. त्यांना पण काही कळत नव्हतं, फक्त फाउंडरशिप घ्यायची आहे. फाउंडरशिप मग मी ठीक आहे काय करायचं टाईप केलं, बघतोय तर काय ऑलरेडी एक्झिट. म्हणजे माझ्या मेसेजचा आयडी ऑलरेडी लागलेला होता 7-8 महिन्यापूर्वी 2019 मध्ये. आणि मग ठीक आहे हरकत नाही, नवीन माहिती माझा लावून टाका बोलतो. तो नाही होत आहे ना, ठीक आहे तंत्र बघू काय असेल ते. आणि त्यांनी माझा आयडी लावला. आयडी लावल्यानंतर मग लगेचच मी थोडा बघितलं की बाबा त्यांनी मला म्हटलं की गुगलचं फाउंडरचं काय झालं असतं किंवा फेसबुक इंस्टाग्रामचं फाउंडर काय झालं, हे सगळं मला त्यांनी सांगितलं. तर त्यावेळेला मी लगेच फाउंडरशिप घेतली. आणि मॅडम तुम्ही म्हणजे त्यावेळेला मलाच काही कळलं नाही कशा पद्धती मला काय करायला पाहिजे. फक्त मी एवढंच केलं की ती फाउंडेशन देण्याचा प्रयत्न केला सगळ्यांना. मी कोण करतोय काय करतोय कुठून आले मला काहीच माहिती नव्हतं. गंभीर सर, आपण त्या विषयावर थोडंसं पुढे बोलूया. आता मला तुम्हाला त्याच्यामध्ये अगोदर हे विचारायचं आहे की तुम्ही स्वतःहून जे काय 8 ते 9 वर्ष किंवा 10 वर्षांचा तुमचा जो काही अनुभव आहे, तर ह्या अनुभवाविषयी त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त एक्सपर्टीज तुमचं कशामध्ये आहे, थोडक्यात जर का मला सांगितलं तर. जर बघायला गेलं तर फाउंडरशिप बेस्ट मानतो मी. जेव्हा केव्हा होईल ते चांगलंच होणार आहे. पण आतापर्यंत बघायला तर मी क्रिप्टोमध्ये ट्रेडिंग फक्त करतोय आणि ट्रेडिंग करायला मला फार आवडतं. फॅन्टॅस्टिक. ओके, बॅक टू मुशर्रफ. থ্যাংক ইউ। শুভেন্দু জি, আপনাকে বলা হচ্ছে কি মানে যে আপনি অন প্যাসিভে যেটা অ্যাজ আ হিউম্যানিটি যে আপনি অন প্যাসিভটা পেলেন, যে অন প্যাসিভের ইয়েতে আপনাকে এন্টার হয়েছেন, তো আপনি কিভাবে অন প্যাসিভকে দেখছেন অ্যাজ আ আপনি যে একটা ফ্রিডম যে আপনি স্বাধীনতা ভাবে, সে আপনি কিভাবে অন প্যাসিভকে বুঝতে পারছেন একটু বলুন। অন প্যাসিভের সব থেকে বড় যে স্লোগানটা ছিল কোম্পানির, মানি ফ্রিডম এবং টাইম ফ্রিডম, এই দুটো আমাকে আকৃষ্ট করে। এবং একটা জিনিস, আমরা প্রত্যেকে ডাল ভাত রুটি খাচ্ছি, তা নাহলে আজ বেঁচে আছি কি করে। কিন্তু আমাদের যে অধুরা স্বপ্নগুলো পূরণ করার জন্য কোম্পানি অ্যাসুপারেশন নিয়ে এসছেন, সেদিক থেকে অন প্যাসিভ ইউনিক এবং
অবশ্যই ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দেম একমাত্র অপরচুনিটি যেটা আমাদের কাছে নিয়ে এসছে। সেই জায়গা থেকে অবশ্যই আমরা বাংলায় একটা কথা আছে যে বাই দ্য পিপুল অফ দ্য পিপুল। তো অবশ্যই এটা গণতন্ত্রের একটা সংজ্ঞা। সেই জায়গা থেকে আমরা অবশ্যই মানুষ মানুষের জন্য, ডক্টর ভূপেন হাজারিকার একটা গান আছে মানুষ মানুষের জন্য, তা আজকে অনপ্যাসিভ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা আমাদের এখানে যে কমিউনিটি আছে অনপ্যাসিভের নাকাশিপাড়ায় 200 জন আমরা আলোচনা করেছি। নট অনলি মানুষ, শুধুমাত্র মানুষ নয়, জীব কুলকেও আমরা যাতে কেউ অভুক্ত না থাকে তার জন্য চেষ্টা করব। এক কথায় মানব ও জীব কল্যাণেই অনপ্যাসিভের সময় এবং অর্থকে আমরা ব্যয় করব, এটা আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। থ্যাংক ইউ। ওভার টু মোশাররফ স্যার। Thank you. Going to Yogini ma'am. Sorry. Mohammad Arshad sir, please. थैंक यू मुशर्रफ साहब। बिलाल साहब तो आपको क्वेश्चन पहले पूछी था इंटरप्ट ना को करते से सो कि तुसा ऑन पैसिव जॉब फाइनेंशियल फ्रीडम देंदे तुसा क्या करे ह्यूमैनिटी वास्ते फॉर गुड कॉज। पहली गल तो है कि सर पहले तो को असा को जे टाइम फाइनेंशियल ते टाइम फ्रीडम मिलसे ते असा ऑलरेडी ह्यूमैनिटी काज वास्ते वर्किंग करन दे वैसे करन दी वैसे तुसा मोस्टली जानदे हो से साडा ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर दे नाल है। तुसा मतलब कि कई दफा विजिट भी कीते हुए साडे कोलों ते उंदे विच साडे असा मतलब कि मुख्तलिफ जगह दे उत्ते ना असा स्कूल पढ़ाया स्कूल बच्चों वास्ते ना ते उंदे विच जेड़ा है असा अगर एक कैंपस की गल करें तो 30% रेशियो इहदे विच रखी हुई है। ते मतलब कि असें दा जेड़ा मिशन है ना असा आखदे से कि ह्यूमैनिटी काज वास्ते इंदा दायरा कार वसी करे असां, क्योंकि देखो ना कि एजुकेशन तो बगैर जेड़ा चीज दे विच भी परफेक्शन कैन है। जेड़े टाइम बच्चा या सारी नस्ल एजुकेटेड हमसे तां साडे मुआशरे दे विच जेड़ा है बड़ा पॉजिटिव चेंज हमसे ते असां ही मकसद को जेड़ा वसी करन वास्ते जेड़ा है असां ऑन पैसिव दा देखो ना असां जेड़े टाइम पहले वीएम ते मिशन डिठा ना ते नाल इथों असां डिठे कि इंदे विच असां को टाइम फ्रेम जेड़ा टाइम फ्रीडम भी मिलदा ते तां वास्ते असां ज्वाइन कीती ते नाल असां मतलब कि जेड़ा कम करन दे से ह्यूमैनिटी काज वास्ते नाल इंदे नाल बे भी हन काफी सारे मतलब कि अगर असां शुरू करूं तो क्योंकि असें दा मेन मिशन ही जिंदगी दा ही है। ठीक है, जिवें वो अल्लामा साहब दा शेर है ना तुसीं सुनिया होवे, ठीक है, उनके मुताबिक मतलब के सारे कम ही असें हिंदे वास्ते होसन। थैंक यू अर्शद सर। थैंक यू बिलाल साहब। ओवर टू योगिनी जी। गंभीर सर, मला आता तुम्हाला जो प्रश्न विचारायचा आहे तो असा आहे की एक फाउंडर म्हणजे तुमच्या हिशोबाने फाउंडरची व्याख्या काय आहे असं आपण म्हणूया। त्याच्याबरोबर तुम्हाला असं विचारायचं आहे की तुम्ही जेव्हा ऑन पॅसिव स्टार्ट केलं तेव्हा सुरुवात केली ऑन पॅसिवची त्यावेळेस तुमच्या डोक्यामध्ये काय होतं की एक ह्युमॅनिटी म्हणजे ज्याला आपण माणुसकी म्हणूया की बाबा किंवा आपलं एक सोशल कॉज जे आपल्याला सोसायटीला गिव्ह बॅक करायचं असतं ह्याच्यासाठी जे आपल्याला ऑन पॅसिव्ह मधनं फायनान्शियल फ्रीडम मिळणार आहे किंवा जो वेळ मिळणार आहे त्याचा उपयोग डोक्यामध्ये ठेवून आणि कशा पद्धतीने तुम्ही तो एक्झिक्यूट करू शकता ह्याच्याविषयी आम्हाला तुम्ही जर का सांगितलं तर बेटर होईल। थँक्यू मॅडम। बोलायचं झालं तर फाउंडरशिप चं महत्व, तर फाउंडरशिप जर बघायला गेलात एखाद्या कंपनीमध्ये आपण मालक म्हणून राहतोय तर नक्कीच त्याचे फायदे चांगले होणार आहेत हे त्यावेळेला मला समजलं होतं। आणि जर समाजाकरता बघायला गेलात तर ज्या दिवशी मी फाउंडरशिप घेतली होती त्या दिवसापासून मला वाटतं मी 15 दिवसामध्ये 82 फाउंडर जोडले होते। 15 दिवसामध्ये 82 फाउंडर। आणि ते सुद्धा बघायला गेलात तर माझ्या तालुक्यामध्ये प्रत्येक गावात एक फाउंडर बनवला होता, प्रत्येक गावात। आणि त्याच्या बरोबरीला बघायला तर माझ्या इथे पेप्सी कंपनीचं म्हणजे तिथे लोक पेप्सी कंपनी रिटायर झाली होती थोडक्यात, म्हणजे कंपनी बंद झाली त्या ठिकाणी। तर त्या प्रत्येक व्यक्तीला मी फाउंडरशिप देण्याचा प्रयत्न केला। का तर भविष्यामध्ये त्यांचं आयुष्य फार चांगलं होईल, फार म्हणजे फार चांगलं। असं जवळजवळ मी एक महिन्यामध्ये जवळजवळ 250 लोकांचा क्राऊड बनवला, जेणेकरून माझ्या तालुक्यामध्ये जी की कमतरता आहे ती भरून काढण्याचा प्रयत्न होईल।
माझ्या मनामध्ये विचार केला तर तुम्ही काय करा सांगाल, तर माझं एवढं होतं की आमच्या तालुक्यामध्ये आहे ना हॉस्पिटॅलिटी नाही आहे अजिबातच. हॉस्पिटल हे नाहीच आहे. म्हणजे आमच्या इथून म्हणजे आमच्या तालुक्यात रायगड डिस्ट्रिक्ट मधून डायरेक्टली जावं लागतं मुंबईमध्ये आणि तिथे पोहोचेपर्यंत मृत्यू झालेला असतो व्यक्ती. मग ऍक्सिडेंट केस असू द्या, हार्टचा प्रॉब्लेम असो, काही असू द्या. तर माझं एक मनामध्ये ठरलेलं आहे की रोह्यामध्ये डिस्ट्रिक्ट मधलं सगळ्यात मोठं हॉस्पिटल बनवायचं आपल्याला. मी तर बनवेन. जर या फाउंडेशनचं जर एवढं महत्व मोठं आपल्याला आहे, तर यातून जर एवढा जर अफाट पैसा येणार असेल तर 100% मी तिथे माझं योगदान देणार आहे. पण डिस्ट्रिक्ट मध्ये 1000 फाउंडर बनवलेत, 1000 फाउंडर. त्यातले माझ्यासोबत फक्त 50 जरी सोबत आले, 50 लोक, तरी सुद्धा मी बराच मोठा त्या ठिकाणी हॉस्पिटल बनवू शकतो. आणि माझ्या समाजामध्ये जे लोक मृत पावतायत आजारांमधून, त्यांना मी सांभाळू शकतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माझं त्याच्यातूनच सगळ्या लोकांना योगदान देतं की कोणी आजारी पडलं तर त्याला तिथे फुकट सेवा मिळाली पाहिजे त्या हॉस्पिटलमध्ये. आणि याच्यासाठी मी काम करत आहे आणि याच्यासाठीच मी फाउंडर साठी काम केलं. आणि 1 वर्षभर कुठलंही काही नाही केलं, फक्त सकाळी उठल्यानंतर ट्रेडिंग करायचं आणि एक फाउंडर जोडायचा. असं मी माझ्या घरातून 15 आयडीचा सेटअप लावून प्रत्येक आयडी मध्ये 80, 84, 15, 25, 35 असं करून 300चं क्राऊड पूर्ण केलं डायरेक्ट मध्ये. फक्त कृपा कुणाची, तर माझ्या मित्राची. त्यांनी मला सांगितलं फाउंडरशिप, त्यावेळी मी केलं. पण फाउंडरशिप म्हणजे बेस्ट आहे. नक्कीच आपण मोठे होणार त्याच्याबद्दल, हे मला चांगलं माहिती आहे, म्हणून मी सगळ्यांना फाउंडर बनवलंय. गुड. थैंक यू सो मच गंबे सर. बैक टू वसीम जी. वसीम साहब, जी मोबाइल की मेरी बैटरी जो है वो डाउन हो रही है। अगर वो मोबाइल बंद हो गया तो मैं माजरत चाहूंगा। चलिए, कोई बात नहीं है, सेम इसलिए करते हैं। सिचुएशन, इस वजह मेरी से भी मैं सेम हैंड सिचुएशन है। आप रेज सबसे भी कर रहा हूँ और बाकी आए हुए तमाम चलिए मेहमानों का ठीक है, शुक्रिया। आपका शुक्रिया। आप इतने शॉर्ट नोटिस में मोहम्मद अरशद साहब आपने ज्वाइन किया और आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली है, तो हम आपसे पहले रिव्यू ले लेते हैं। नहीं, अभी एक बात मैं बोलना चाहूंगा अरशद साहब से कि अभी कितने % आपकी बैटरी चार्ज है सर? 1%। तब रिस्क नहीं लो। तब रिस्क ये नहीं मैं ले सकते। स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देता हूँ आपको। जल्दी से बता दें आपका कैसा नहीं, लगा ये शो। मैं नहीं बहुत जबरदस्त। मेरा तो एक्सपीरियंस दिल कर देखें रहा था आपको, कि नहीं और पता है कंटिन्यू आप, करूं। थोड़ा सा आपके लिए अजीब भी था, नई नई चीज भी थी। योगिनी जी, ये नए थे, इनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उस हिसाब से आई थिंक बिल्कुल। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो नया जब आता है ज़ाहिर है कंफ्यूज भी होता है, शो का फॉर्मेट भी थोड़ा सा अजीब सा है, लोगों को सोचना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच अर्शद साहब, आप ये लीव कर सकते हैं और अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बिलाल साहब। थैंक यू मुशर्रफ थैंक यू साहब। सो थैंक यू मच अर्शद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। योगिनी अल्लाह जी, हाफिज। थैंक आप यू। बताइए आपको कैसा शो लगा। आप उसमें काफी इंटरप्शंस भी आई, काफी कुछ हुआ, लेकिन आई थिंक मुझे तो मजा आया। कोई बात नहीं, हमें वसीम जी, सबसे पहली बात कि आज मैं फर्स्ट टाइम इस शो पे हूँ और मेरे साथ जो जयेंद्र गंबे जी है वो भी आज फर्स्ट टाइम इस शो में है। तो उनका काम मैं खुद पर्सनली जानती हूँ, तो मुझे लगा कि उनको ये मौका मिलना चाहिए कि लोगों के सामने आने के लिए, कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर अपने लोगों के लिए फाउंडरशिप के हिसाब से किस तरह से उन्होंने काम किया है और क्या उनका थॉट प्रोसेस था, जिस हिसाब से हम हमेशा एसजी से सुनते हैं कि यू हैव टू, कि आप क्या करोगे, कोई अच्छी चीज हमें ह्यूमैनिटी के लिए करनी चाहिए। तो वो चीज उनको जब फाउंडरशिप मिली थी तो उसके बाद में उनका वो दिमाग में वही था कि बहुत सारी चीजों को जब हम खुद फेस करते हैं हमारी फैमिली में, तो बाहर के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए और जो जरूरी है वो तो होना ही चाहिए। और हमें सबको पता है कि हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं ऑन पैसिव के साथ साथ, तो वी हैव टू गिव बैक टू आवर सोसाइटी। और अनुभव बहुत अच्छा रहा, आई एंजॉयड। खाली टाइम थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्न है क्योंकि इट्स ऑलरेडी 11:30 इन द नाइट। मुझे अंदाजा है, लेकिन ये था कि मगर मैं और थोड़ा टाइम होता तो मैं और एंजॉय करती हूँ और 4-5 पेशेंट्स के साथ में, तो ये बड़ी बात थी। यहाँ पे शुरू में एक ट्रेनिंग सेशन भी साथ ही होता है कि हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। जो नए लोग आते हैं, ये शो का फॉर्मेट क्या है, तो लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि फॉर्मेट बहुत ईजी है। मैं आपको जाना चाहें जा सकती हैं, आपको पता है काफ़ी लोग, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा बिलाल साहब का, जो हमारे साथ है, जो कि आज सराइकी गेस्ट थे।
और बिलाल साहब का ताल्लुक एजुकेशन से है। ये ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग ये ओब्लस का काम भी कर रहे हैं, एजुकेशन में डिस्काउंट वगैरह जो भी है। बिलाल साहब आप जरा उर्दू में आप बता दें, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। हमें समझ में आया ऐसा बोल दे प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। अनम्यूट करें जरा प्लीज। आप म्यूट है बिलाल साहब। थैंक यू वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम योगिनी का बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ साहब, मुशर्रफ बांग्लादेश से, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं वेरी फर्स्ट टाइम जो है वसीम साहब जो अक्सर कहते रहते थे कि आप जो है लाजमी हमारे शो का हिस्सा बने, तो जैसी डिस्कशन चली तो मैंने कहा ज़रूर इंशाल्लाह हम जो है इस प्रेजेंस को जो है वो लाजमी जो है अटेंड करेंगे। तो जो अरशद साहब ने जो मुझसे क्वेश्चन भी किया था, जैसे वसीम सर ने भी बताया कि एजुकेशन के हवाले से, तो मेरा एक्चुअली ताल्लुक जो एजुकेशन सेक्टर से है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 4 इदारे चला रहा हूँ और इन 4 इदारों के अंदर तकरीबन मोर देन 300 स्टूडेंट मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पे पढ़ रहे हैं। और मेरा ये अपनी कोशिश थी, और जब मैंने ऑन पैसिव की विजन और मिशन को पढ़ा और देखा सुना, इसके अंदर आया, क्योंकि थोड़े बहुत हम लोग नेटवर्किंग के अंदर भी थे और बहुत सारी कंपनी जैसे आती हैं जिनको ROI कहते हैं, तो वो आई स्कैम करके चली गई। लेकिन हमें इतना अच्छा लगा इसके अंदर ऑन पैसिव का जो विजन और मिशन ऐसी की जो बातें सुनी, डायरेक्टली मैं उनको जो है वो अटेंड करता हूँ, उनकी जो मीटिंग होती है तकरीबन पिछले 2 साल से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं मेरा अपना जो विजन और मिशन है एज सर के मिशन को मिला के जो है हम ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में। इसके साथ जो है मतलब कि जो अंडर डेवलप्ड एरिया हैं वहाँ पे स्कूलिंग एजुकेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे जो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जो इस काम को, इस मिशन को, क्योंकि देखें हम लोग सारे फैमिली हैं और इस फैमिली के अंदर एक दूसरे का मतलब कि विजन, मैं अक्सर जो है अपने जो दोस्त हैं ना, डेली हम जो है 10 या 15 फाउंडर साथ होते हैं, मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ आप ऑन पैसिव के अंदर आ गए हैं और आप का क्या विजन है, आप क्या करेंगे, आपके पास इतना पैसा आ गया, तो मतलब कि कोई कहता है कि जी हम, मतलब कि उनका एक लेवल थिंकिंग छोटा है, तो हम जब बहुत बड़ा सोच के बैठे हैं और मेरे ख्याल में ऑन पैसिव इससे भी कहीं बड़ा है। और इंशाल्लाह इस मिशन के साथ जो हम इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू वसीम सर का कि उन्होंने आज हमें मौका दिया यहाँ पे बोलने का, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मैं तमाम दोस्तों का जितने भी हैं इंटरनेशनल, मुशर्रफ सर, मैम योगिनी, इनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू योगिनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे और आज के बाद आपको इजाजत देंगे और आप बहुत लेट हो गए हैं। और मैं बिल्कुल ये बोलना चाहती हूँ, जो भी अभी बिलाल जी ने बोला है ये बिल्कुल बात सही है। हम एक फैमिली है और जो आप एजुकेशन फील्ड में करना चाहते हो, और आपने जो बोला कि 14 से 10 से 15 फाउंडर्स आप डेली बेसिस पे आप मिलते हो और आपकी बातें होती रहती है। आप खुद इस बात पे नोटिस करोगे कि जब आपने शुरुआत की थी 2 साल पहले, उस वक्त की आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका, और 2 साल के बाद में जब आप वेबिनार्स अटेंड करते हो उसके बाद में का जो आपकी सोच, और ये 10-15 लोग जब आप इकट्ठा बैठते होंगे उस वक्त का आपका अभी का सोचना, इसमें जमीन आसमान का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, उस वक्त की जो मेरी सोच थी, मैंने पैसे के लिए बिल्कुल ज्वाइन किया था। आपने जैसे बोला नेटवर्किंग में बहुत सारी चीजों को हम फेस करते हैं बिजनेस के तौर पे, कभी सरवाइव करते हैं, कभी सक्सेसफुल होते हैं, बहुत बार तो फेल ही हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के बजाय। तो ये सब चीजों को झेलते झेलते हम एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक तो इंसान क्विट कर देता है हर एक चीज, या फिर एक तो इंसान और कुछ खोज करने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान कभी हारता नहीं है, जिंदगी उसको जीनी ही होती है, तो वो कोशिश जारी रखता है, ये हम बोलेंगे। तो सबसे पहली बात, हम म्यूट है जी बोलिए। बिलाल भाई, म्यूट है आप म्यूट हैं बिलाल भाई, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी,
मैम ने जैसे बताया ना कि हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग वाकई में मतलब कि आज हम सोचते हैं 2 साल पहले को, और अगर आज के दिन को सोचते हैं तो हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग इतना आगे चला गया है कि अब ये पीछे आना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। हम सोचते भी उस तरह हैं, सोचते थे छोटा छोटा, मतलब जैसे मैम ने बताया हम पैसे के लिए आए थे, हम यहाँ आगे कमाएंगे, लेकिन जैसे जैसे मतलब ऑन पैसे की ये फैमिली बढ़ती गई, लोग आते गए, मतलब कि इतना बड़ा कारवां बन गया कि अब मतलब कि इस सिस्टम के साथ जुड़ के, इसके साथ काम करके और इस सोच को आगे लेके जो है चलना, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम इस जर्नी को, मैम ने जैसे बताया। थैंक ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको पता है कि हम इस बात को एंजॉय करते हैं। जैसे एस जी हमें हमेशा बोलते हैं कि एंजॉय द प्रोसेस, तो हम यही चीज हमारे साथ में होती है कि हम इस चीज को एंजॉय करते हैं। मेरे साथ बहुत, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे फाउंडर्स को मिलती हूँ, तो ये मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती रहती है। उनसे जब हम मिलते हैं, सोचते हैं, तो जब हम बोलते हैं, एक रिसेंटली किस्सा बिल्कुल आपको सुनाना चाहूंगी। मैं मेरी फ्रेंड की यहाँ पे गई थी, वो भी फाउंडर है, और बहुत दिनों के बाद में मैं उससे मिली थी, तो पर्सनली हम दोनों एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे थे। उनके यहाँ पे कोई गेस्ट आए थे जो कि एक क्रिकेट के कोच है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि चलो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है क्रिकेट के बारे में, बट फिर भी उनके साथ एक जस्ट हाय हेलो कर, उसने पहचान करवा के दी, मैंने हाय हेलो बोला, और उसी के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि जब मैं बोल रही थी मेरा एक्सपीरियंस में यहाँ पे गई थी, तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, उनको मैंने ये बोला कि ठीक है, आपको फाइनेंशियल, आपका स्टार्टअप छोटा सा है, आपको फाइनेंस की जरूरत है, एक 5-6 महीने का टाइम दीजिए, मैं खुद आपको इस बात के लिए सपोर्ट करूंगी। दूसरे के साथ बात की, उसने मुझे कुछ और बोला, मैंने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप 5-6 महीने का हमें टाइम दीजिए, हम खुद आपके स्टार्टअप के लिए सपोर्ट करेंगे, आपके स्कूल के लिए सपोर्ट करेंगे। ये हमारी बातें वहां पे हुई थी। तो वो सिर्फ मुझे देख रहे थे, और मुझे देखने के बाद में उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, ये मुझे जानने के लिए उत्सुकता हो रही है, और आप कितना कमाते हो, क्योंकि आप इतना बात कर रहे हो। तो मैंने उनको एक ही सवाल किया कि पहले उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने सीधा सा मेरा आंसर था कि आई एम एन नॉन पैसिव फाउंडर। तो उनको लगा कि सच में बहुत बड़ी कंपनी मेरी है, और मैंने उनको जो बोला कि वी आर आईटी बेस्ड एंड वी आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारा है। तो ये सब बातें होने के बाद में जब मैंने बोला कि 4 साल से हम हैं और हमारे किसी के भी जेब में कोई पैसा नहीं आया, तो ही वाज लाइक वेरी सरप्राइज। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो, आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, और आप इतनी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो, और इतना कंफर्म कैसे बोल सकते हो कि 5-6 महीने के बाद में आप किसी को सपोर्ट करोगे। मैंने बोला देखो, मुझे पता है कि मैं किस कंपनी के साथ में कनेक्टेड हूँ, और मैं क्या दे सकती हूँ, और मुझे ये ताकत किसने दी है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जो एस सर को हम देखते हैं 2 साल से, उनको सुनते हैं, देखते हैं, वो जिस तरह से करते हैं वो हमारे में ऑटोमेटिकली आ जाता है, और हमारी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से आज हम ये बात कर सकते हैं कि हम दे सकते हैं, और सच में दे सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ और मैं दूंगी नहीं। तो सिर्फ मेरे ही साथ में है, ऐसी बात नहीं है, ये हर एक फाउंडर के साथ में होती है। उसके हर एक के अनुभव अलग अलग है, क्योंकि जैसे ऐसा बोलते हैं हर एक इंसान यूनिक है, तो हर एक के अनुभव अलग अलग है। आज अगर हमारे साथ गंबे सर थे, तो गंबे जी ने हमें, मुझे पता है क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट से, जो कोंकण बेल्ट से आता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी परेशानियां हैं, हमें पता है क्या क्या चीजें होती है, तो हम मिल के वहां पे कुछ करना चाहते हैं, और वो ताकत हमें ऑन पैसिव ने दी है कि जैसे जैसे हम कुछ करेंगे, वहां पे इनके साथ में कुछ 200 अलग अलग गांव में 200 अलग अलग फाउंडर्स है, हर एक गांव में एक फाउंडर है। तो कोशिश ये है कि अगर उस फाउंडर के पास कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम उस फाउंडर को आता है, तो वो अपने गांव के लिए पहले सोचेगा, अपनी बस्ती के लिए पहले सोचे, ताकि उसकी बस्ती अगर सही ढंग से, अच्छी तरह से पूरी कवर अप अगर उसने सही तरीके से कर लिया, जो कि वहां पे जो भी जरूरती चीजें वो अगर वहां पे हो गई, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट
ऑटोमेटिकली एक एक गांव, छोटा छोटा गांव कस्बा कर करके ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रिक्ट एक अलग लेवल पे लेके जाने की हम कोशिश करेंगे। तो यही चीजें हैं, यही मकसद है कि हम रूट कॉज से ह्यूमैनिटी को ऊपर उठाए, अपलिफ्ट करें। तो बस हम लोग यही सोच के आगे बढ़ रहे हैं। तो बैक टू वसीम जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। योगिनी जी, एक बात तो आप ये यकीन करेंगी कि जब से ज्वाइन किया है, काफी चीजें हमने सीखी हैं। एक तो पेशेंस और पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, जो कि पहले जो कम भी थी, और काफी चीजें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और आई थिंक इससे पहले जितनी भी कंपनियां पहले कर चुके हैं, उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस पहले नहीं था। तो फिर ये कि आप सीईओ को देखते हैं, हमारा सीईओ ऐसा है कि जो कि यूनिक है। आई थिंक ऐसा सीईओ क्योंकि मैं पहले काफी कंपनी देख चुका हूँ। ट्रांसपेरेंट, मैंने खुद भी ऐसा सीईओ कभी देखा नहीं, और ना, वो बोलते हैं ना, न भूतो ना भविष्यति, हाँ ऐसे है सर। सर इतना ही बात बोलूंगा मैडम, मैं इतना ही बात बोलूंगा। सर के सोच की वजह से, सर के सोच की वजह से मैंने हर गांव में फाउंडर बनाया हूँ। हर एक गांव में इसलिए फाउंडर बनाया कि सर का बहुत बड़ा सोच था, वो मैंने देखा, उसको मैंने समझा, उसी के बाद मैंने हर गांव में एक फाउंडर बनाया। क्योंकि मेरा एक ही कहना है, एक ही सपना है कि हर गांव का जो प्रॉब्लम होता है ना गांव का, वो उनसे सॉल्व हो जाए। इसलिए मैंने एक ही फाउंडर बनाया, क्योंकि वो बड़ा हो जाए तो हर एक को टाइम दे सकता है, हर एक का बीमारी या जो भी है उसको खर्चा होता है, जो भी है उसको हेल्प करे। क्योंकि ऑन पैसे की इतनी बड़ी ताकत है कि अनलिमिटेड ताकत है। इतना पैसा आएगा तो कुछ वो गांव के लिए करेगा। पैसा ही इतना बड़ा होगा कि वो गांव के लिए करना ना चाहते हुए भी करेगा। ये सोच के मैंने हर गांव में फाउंडेशन बना के सोचा। बस इतना ही बोल सकता हूं। जबरदस्त। जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपको आज का फर्स्ट टाइम, जैसे कि योगी जी ने कहा, आपने फर्स्ट टाइम शो ज्वाइन किया, और आई थिंक फर्स्ट टाइम वेबिनार्स द्वारा भी कोई ऐसे किया है। आपको कैसा लगा आज का फॉर्मेट हमारा शो? एक्चुअली हमारा इस शो की खूबसूरती ये है कि आप मराठी में बात कर रहे हैं, मुशर्रफ बंगाली में, और बिलाल भाई सराइकी में, और हम एक जगह पर है। नॉर्मली मेरे को 2 बार चांस मिला है, 2 बार चांस मिला। पहला टीम चैंपियन, ऑन पैसो टीम चैंपियन की वजह से पहला मराठी में शो हुआ था, एक ही शो हुआ था, हाँ जी, उसमें मेरे को बुलाया गया था, और उसमें भी मैंने यही बात कही थी। ऑन पैसो का टीम चैंपियन का मराठी वेबिनार जो हुआ था, पहला वेबिनार, उसमें मेरे को यही बात बोला, तो मैं यही बोला था लोगों को। फिर वापस दोबारा मौका मिला मेरे को मराठी में बात करने का मैडम की वजह से, तो फिर वापस दोबारा आ सकते हैं। योगिनी जी, आप इन्हें उस ग्रुप में ऐड कीजिए। हमारा ग्रुप है जो 3 लैंग्वेजेस वाला व्हाट्सएप का, और उसमें आप जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, आप आए, उस शो का पार्ट बने। और आप Thank अगर मराठी गेस्ट के साथ, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर नई नई लैंग्वेजेस आए और यहाँ पर अपनी जुबान में बात करें। नॉर्मली मैंने देखा कि हम सिर्फ एक इंग्लिश होती है या उर्दू हिंदी ही होती है, तो और बाकी जुबानों में इतना मौका नहीं मिलता। जैसे बिलाल साहब बात कर रहे हैं, सराइकी इनकी लैंग्वेज है, उर्दू में बात करते हैं, लेकिन काफी कंफर्टेबल बात कर रहे थे। मुशर्रफ की बंगाली लैंग्वेज है, तो वो ये सरविंदु जी आई थिंक वो हिंदी में बात कर रहे थे। वसीम भाई, आपकी आवाज बीच में मराठी बिल्कुल में लो बात- आ रही है। और Actually, मैं यहाँ पे और एक बात बिल्कुल पूछना चाहूंगी कि ये जो लैंग्वेज बिलाल भाई बोल रहे थे, सराइकी, तो ये मैंने पहली बार वर्ड सुना। जैसे मराठी हम बोलते हैं, तो ये पहली बार सिरकी, राइट? अगर मैं सराइकी, गलत नहीं, सराइकी, सराइकी, कई सारे सराइकी। अल्फाज तो ये क्या लैंग्वेज का मिक्स है या फिर क्या है? पंजाबी का मिक्स, पंजाबी के साथ मिक्स है, पंजाबी की मिक्स पंजाबी है। का एक्सेंट कह लें आप। ओके। पंजाबी के काफी एक्सेंट है। बिलाल, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी जी एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं सर। मैं वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है इसको, लाइव शो को। मुझे यहाँ पे जो सबसे अच्छा लगा है ना कि मैं अक्सर जो मतलब कि डायरेक्ट एज सर को या बड़े लीडर को लोग नहीं सुनते ना, मेरे ख्याल में उनके विजन भी इतना नहीं है। आज मैंने जो मतलब कि मैम योगिनी है, इनकी बातें, या इनके साथ जो दूसरे सर बैठे हैं, इनको जब मैंने सुना है, वाकई मतलब कि इनका वो विजन और मतलब कि ये ह्यूमैनिटी को प्रमोट जो करना चाहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। और मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे फाउंडर हैं वर्ल्ड वाइड, अगर उनका इतना अच्छा विजन जैसे ये है, बड़े ये अटैचमेंट इनकी है, तो मेरे ख्याल में कि वी कैन चेंज द वर्ल्ड, कि इट इज पॉसिबल वी कैन चेंज द वर्ल्ड। ये तब होता है कि जब लीडर जैसे कि वसीम सर हैं, ये हमें
मैं देखेंगे, मैं जो ये कोई जो है खुशामद नहीं कर रहा हूँ वसीम सर, अक्सर जो है कि वो हमें इसके बारे में बता रहे होते हैं, तो हम बाज़ों को जो सुन रहे होते हैं नहीं भी सुन रहे होते, लेकिन वाकई जो मतलब कि ये लीडर के साथ रहे हैं, इनकी लीडरशिप की जो स्किल्स हैं, और दूसरा जो मतलब कि जो हमारे फाउंडर का विजन है, मैं मतलब कि इतना एक्साइटेड हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि वाकई में मतलब कि ह्यूमैनिटी काज के लिए सारे लोग पूरे वर्ल्ड वाइड जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और आई होप कि जो है चेंज विल कम, कि बहुत बड़ा चेंज आएगा और ये सारे दुनिया देखेगी इसको। थैंक यू वसीम, थैंक यू। जी मुशर्रफ भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक शो को हम थोड़ा काम की तरफ लेके जाते हैं, काफी लंबा हो रहा है। योगेश जी को कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये तो हम लोग मतलब हमारी खुशनसीबी है कि ये सेशन को वसीम भाई ने और हम लोगों ने डिस्कस करके स्टार्ट किया। पहले दिन हम लोगों को भी ऐसा थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ था, पर बड़ा इंटरटेनमेंट लगा था। उस दिन भी हम लोगों का 12:30 1 o'clock के करीब चला गया था, पर बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें जब आप यूनिक करना चाहते हो ना, तो उसमें जब न्यू कोई इंट्रोड्यूस आपसे होता है या कुछ लोग नए उस जगह पे जाते हैं ना, तो ये सरप्राइज उनके लिए होता है कि हो क्या रहा है। तो एक्चुअल मैं उन्हीं चीज़ों को फील करता हूँ कि ऑन पैसिव ने ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे ऐसे मतलब जगह पे हम लोगों को इन्वॉल्व कर दिया है, बेसिकली जो हम कभी सोच भी नहीं पाए थे। तो एक्चुअली मैं इसी इसी चीज़ से ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग इम्प्रेस होते हैं, सर आप कैसे इन चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट होते हैं या इस तरह से। तो ये ऑन पैसिव का जो एक वो क्या है ना, फैमिली, ये यही सिखाया है हम लोगों की वर्ल्ड क्या है। वर्ल्ड बहुत एक छोटा, अगर मैं इनको लोग कहते हैं कि इसमें कनेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है, और आज की डेट में टेक्नोलॉजी मतलब इतना छोटा कर दिया वर्ल्ड को कि अगर मैं कनेक्ट होना चाहूँ तो पूरे वर्ल्ड से विद इन अ सेकेंड, अगर मिनट तो मैं बहुत दूर की बात है, विद इन अ सेकेंड हम लोग कनेक्ट होते हैं। जब एज सर आते हैं ना वेबिनार पे, तो कहते हैं कि विद इन अ मिनट वो 2000 4000 कैलकुलेट होता है, तो मिनट छोड़ दो आप, सेकंड में वो कैलकुलेट होने वाला है कि फाउंडर्स कितने जल्दी वो आने वाले। मतलब इस तरह से हम लोगों का टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और युमनी मैम का, जी सर सर एक मैं प्लीज। बात जब बोलना चाहूंगा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जब मैं ज्वाइन हुआ था 2019 में, 3 अक्टूबर 2019 को ज्वाइन हुआ था, तभी भी मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं क्या है ऑन पैसिव। जब मैं 6 महीने के बाद फिर दोबारा वापस जुड़ा, तो उस समय भी किसी ने खाली ऑन पैसिव का फाउंडरशिप इतना ही बताया, कि बाद में कोई देखने के लिए भी आया नहीं। लेकिन नीरज दलवी साहब एक बार मेरे को फोन पे मिले थे, क्योंकि मेरे को तकलीफ आ रही थी काम करने की। तो उनको मैंने फोन किया था, तो सर ने एक ही बात बोला, आप क्या करो, कैसे करते हो, यही जो आपने बताया पूछा, वही मेरे को पूछा गया था। तो मैंने ये बोला, तो आपको आना पड़ेगा एक मराठी वेबिनार। तब मैं गया था, लेकिन ऊपर से कोई मेरे को यानी कोई अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं पता। खाली इतना ही पता है कि मेरे को फाउंडर बनाना है। बनाने का सोचा, और बनते बनते इतना सारा बढ़ गया। कितना टीम अभी है मेरे को नहीं पता। इतना तो जरूर है कि लगभग 2-3 हजार के ऊपर का ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1000 तो मेरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और पता भी नहीं है मेरे वाइफ के अंडर में, बच्चे के अंडर में, मेरे भाई के अंडर में, मेरे मौसी के अंडर में। बहुत सारे मैंने दोस्तों को ऐसा ही दिया है। मैंने 5 लोगों को दोस्त को ऐसा ही लगा के दिया है, जब आएगा उसको भला हो जाएगा। लगभग 2-2.5 लाख रुपए मैंने उस समय तुरंत एक ही दिन में लगाया था। पता नहीं था क्या है, खाली फाउंडरशिप है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि मेरे को जाना था किधर, हैदराबाद। मैडम मालूम है ना, मेरे को बोला गया था 25 लोगों का टीम चाहिए, मैंने 80 लोग जुड़ाए, और मैं हैदराबाद पहुंचना चाहता था। एक ही दिन में 80, लगभग मैं 15 दिन के अंदर 80 लोग जुड़वाए, क्योंकि मेरे को कहाँ पे जाना था, हैदराबाद। यही सोच थी मेरे, हैदराबाद जाना है, सर से मिलना है, सर आने वाले, सर आने वाले, यही मेरे को बोला गया था, बाकी कुछ नहीं मालूम। तो अच्छा लगा, वो झूठा था सच्चा था मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अभी इतना है कि मेरी वजह से बहुत सारे लोग ऑन पैसिव में आ गए, और उनसे क्या होगा कि लोगों का भला होगा। ये मेरे लिए अच्छा है। अभी कभी भी मैडम से बात होता है मेरा, मैडम एक ही बोलते हैं कि हमें लोगों को करना है कुछ ना कुछ। मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ करना है। ये एक बार ये चालू हो जाए ना, तो एक साल के बाद हम लोग बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। इतना तो मेरे दिमाग में है कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल कितना कमा रहा है, अनलिमिटेड कमा रहा है। तो ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी, ये तो कितना पैसा जनरेट कर सकती है। मैंने आज है ना एक वीडियो देखा था, क्या 16 साल का लड़का
उसने डोमेन और होस्टिंग लिया और वो ब्लॉग बना रहा है और पर डे $300 कमा रहा है। इधर से उठा के यूएस का देखने का, यूएस में डालने का और नया नया जनरेट ब्लॉग बनाने का, और $300 या $500 पर डे कमा रहे। 16 साल का लड़का, वो मैंने आज ही देखा, उसके ऊपर मेरा स्टडी करना चालू कर दिया। बहुत सारा इनकम है। तो हमारा होस्टिंग, हमारा डोमेन, हमारा डाटा सेंटर, सब कुछ हमारा, तो हम कहाँ पे जा सकते हैं ये तो पता होना चाहिए हर एक को। यही ऑन पैसिव है। और महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, मराठी बोलने वाला बंदा ही नहीं है। भाई सोच में पढ़ दो, कभी कौन बोलने के लिए आएगा? एक बात तो मराठी बोलो, कोई नहीं बोलता, बात ही नहीं करता। मैं इतना ही बोलूंगा, मराठी बोला आना चाहिए। ये शो इसीलिए तो है, यहाँ पे आप मराठी बोलो, बंगाली बोलो, सराइकी बोलो। तर मला बरं वाटलं की मराठीमध्ये बोलणं करायला, की माझ्या महाराष्ट्र फार मोठा आहे आणि महाराष्ट्र मुंबईला टच आहे। एवढा मोठा आहे की मला तर वाटतं की महाराष्ट्रामधूनच जवळजवळ 2 लाख फाउंडर असतील, मी तुम्हाला सांगतो आज। तरी माझ्या कोकण पट्ट्यातूनच जवळजवळ मी तुम्हाला सांगतो की जवळजवळ 8,000 फाउंडर आहेत कोकण पट्ट्यात। तर महाराष्ट्र भरपूर मोठा आहे। तर नक्कीच 1 ते 1.5 ते 2 लाख फाउंडर महाराष्ट्रातूनच आहेत। महाराष्ट्रामध्ये वक्ताच नाही आपल्याकडे। महाराष्ट्र जे चालू केलं ते पण बंद झालं, कारण हिंदी समजतं, मराठी समजत नाहीये। मुकुंद सरांना मी नेहमी, म्हणजे मला असं वाटतं की मुकुंद सरांनी का ते बंद केलं, मुकुंद काबरा सरांनी ते ठेवायला पाहिजे होतं। ओके, असू द्या। तुमची रिक्वेस्ट जी आहे ती नक्की वरपर्यंत पोहोचवते मी, की मराठीमध्ये पुन्हा चालू करायचं। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम रीजनल लैंग्वेज जब भी कोई स्टार्ट करते हैं तो हमने वो बहुत कोशिश की थी कि मराठी में मैं, नीरज और मुकुंद जी, हमने तीनों ने मिलके मराठी सेशन शुरू किए थे। तो एक रीजन ये था कि जो मराठी लोग हैं उन तक कभी उनको इंग्लिश, कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, कुछ लोगों को हिंदी बहुत सारे लोग समझ लेते हैं, मगर फिर भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो रीजनल लैंग्वेज में वेबिनार इसलिए शुरू किया था ताकि लोगों को पता चले, और लोग ऑलरेडी है बहुत सारे लोग मगर मराठी लैंग्वेज के सेशन में आते नहीं है। तो होता था कि 1000 लोगों की लिंक है हमारे पास, और 200-250 लोग सिर्फ मराठी के लिए आते थे, रीजनल लैंग्वेज के लिए, और उसमें से 100 लोगों से ज्यादा तो लोग अदर लैंग्वेजेस के रहते थे जो हमें मराठी में सुनते थे। उनको समझ में नहीं आता था, फिर भी वो मराठी सुनते थे। तो ये बात कहीं पे तो भी फिर थोड़ा दिल को अच्छा नहीं लग रहा था कि फिर क्यों इतना, क्योंकि हम वी आर गिविंग अ टाइम, हम लोग वहां पे टाइम दे रहे हैं। मेरा टाइम जा रहा है, नीरज का टाइम जा रहा है, मुकुंद भाई का टाइम जा रहा है। तो हम टाइम अगर दे रहे हैं रीजनल स्पेशली लोगों के लिए कर रहे हैं, और अगर वो लोग जो है अगर वो सेशन अटेंड नहीं करने, हमें पता है, जैसे अभी गंबे जी ने बोला कि ऑलरेडी 2 लाख तो लोग महाराष्ट्र से होंगे, उसमें से कम 10,000 तो हो सकते हैं जो मराठी बोलते हैं। 10,000 में से क्या 1000 लोग भी मराठी सेशन नहीं अटेंड कर सकते? तो ये थोड़ा सा दिल को कहीं पे बुरा लग रहा था कि उनके लिए सेशन कर रहे फिर भी नहीं आ रहे। तो बेटर वे है कि हम इसको क्लोज करें। लोग हिंदी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, तो लोगों को हिंदी ही सुनने दो। तो ये सोच के फिर हमने थोड़े वक्त के लिए उसको क्लोज कर दिया। कोशिश में है कि फिर से हम कुछ शुरू करें मराठी लैंग्वेज में, तो कोशिश आगे जारी है। बिल्कुल आज इनकी बात में पहुंचा दूंगी उधर तक। कोई बात नहीं, छोटा मत करे, आप जब चाहे यहाँ आकर मराठी बोल सकते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बात ये भी है कि मैं योगिनी मैम का, और जब उस टाइम में मराठी सेशन चल रहा था उसमें मैं भी अटेंड रहता था, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बेसिकली मैं मुंबई 4 साल में रह चुका हूँ गोरेगांव में। तो हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे समझ में सारे आते हैं, पर मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बोलने में। पर हिंदी लैंग्वेज की एक बात होती है ना कि इंडिया का जो एक हिंदी लैंग्वेज है, तो उसमें लोग उसमें एक जब जुड़ते हैं ना, तो ये खुद ब खुद एक अंदर से फील होता है ना कि जैसे आप अपनी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज में बोलते हो, अगर ना भी चाहे तो लोग उसको सुनना चाहेंगे। तो हमारे इंडिया का जो एक हिंदी लैंग्वेज है ना, अगर मैं किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज में कनेक्टेड रहे जो भी, मगर जब हिंदी की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको सुनने का एक अलग से फीलिंग होता है, नहीं है चलो उसमें कनेक्ट हो जाए। तो टीम चैंपियन वो एक ऐसा सेशन होता है कि टीम चैंपियन में लोग जितने भी कुछ कह ले, अलग अलग लोग प्लेटफॉर्म बना ले, पर टीम चैंपियन जब चलता है ना, तो उसमें लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक मतलब वो पावर है, और ये भी है लीडर्स का बिल्ड किया हुआ पावर है। ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली वन डे में हो गया, ये काफी मेहनत लगा, काफी टाइम लगा इन चीजों को रेडी करने में। आज लोग कुछ भी कहें,
पर उस सेशन को आज भी वही वैल्यू मिलती है जो स्टार्टिंग में थी। सो थैंक्स फॉर ऑल द लीडर्स जो इसका है। इसका और एक रीजन मुशर्रफ ये है कि कोई भी सिस्टम जब बनती है ना, तो उस सिस्टम को जब लोग फॉलो करते हैं, उसके ऊपर फोकस रहते हैं, सिस्टम रोज के रोज जब आपके सामने आती है, और सामने कोई भी हो, जो भी आपके सामने प्रेजेंट करता है, वो जब दिल से वहां पे प्रेजेंट करता है और एक रीजन के साथ में, जब क्योंकि इंटेंशन सबके अच्छे होते हैं, और वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ में वहां पे जब जो भी प्रेजेंट करते हैं, आप हो, हरीश जी है, मैं हूँ, कोई भी हो, वहां पे कोई भी आके अगर प्रेजेंट करता है, तो उसका मकसद, जब हमने स्टार्ट किया था, जब दिनेश भाई ने स्टार्ट किया था, जस्सी भाई थे, केडी जी थे, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको सुना था, उस वक्त की बात मैं कर रही हूँ, तो उस वक्त जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उनका उस वक्त का मकसद हमारा, जब मैं सुनती थी, तो यही था कि उस वक्त फाउंडर्स जुड़ने चाहिए थे हमारे साथ में, और वो वही पैशन था, वही सब कुछ था। आज भी हम उसी पैशन के साथ में रोज आके बैठते हैं, रोज सुनते हैं, रोज बातें करते हैं, तो वही होता है। जब आप सिस्टम के साथ में, किसी भी सिस्टम के साथ में जुड़ते हो, तो सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। पहले आप करते हो कुछ दिनों के लिए, और बाद में सिस्टम आपके साथ काम करके। तो यही खासियत है टीम चैंपियंस की, कि टीम चैंपियंस आपको बहुत आगे तक लेके जाने के लिए हेल्प किया है हमें, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया है टीम चैंपियन का अपने। थैंक यू सो मच। बिल्कुल यमुनी मैम, बिल्कुल। और इसमें तो मैं एक चीज ऐड करूंगा कि डेफिनेटली ऑन पैसिव में लोग बहुत सारी चीजों को ऐड करते हैं कि सर मैंने इस तरह से ऑन पैसिव में आया, मुझे लीडर्स ने मोटिवेट किया, मैं ये चीजों को यहाँ से सीखा हूँ। पर मेरे साथ अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हुई है कि मैं सिर्फ 2 घंटे में ऑन पैसिव को समझाऊं, जाना हूं और पूरी तरह से स्टडी किया हूं सिर्फ 2 घंटे के अंदर। और आज तक मैंने किसी से गाइडलाइंस नहीं लिया हूं, बल्कि सिर्फ ऐश को फॉलो करता हूं कि उनका इंस्ट्रक्शन क्या होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है किस चीज में। क्योंकि जब आप उन चीजों से डीपली पहले से ही कनेक्ट रहते हो ना, बस आपको सिर्फ पॉइंट आउट क्लियर करना होता है कि आप वो मेरा वे जो है, मैं जिस जगह पे जाना चाह रहा हूँ, या जो उसका प्लेटफॉर्म है, जो उसका डेस्टिनी है, वो किस जगह लेके जा रहा है। तो वो आपका जब क्लियर होता है ना, तो आपको किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरा जो कंफ्यूजन है वो 100% वो पूरा क्लियर हो गया है उसी टाइम में जब मैं ऑन पैसिव में आया हूँ। क्योंकि मेरे ज्वाइनिंग के बाद मेरे लीडर पूछते हैं कि जो इंडिया के हैं, वो कहते हैं कि सर इसके बाद क्या होने वाला है, ये कैसा होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि काश मुझे ये मौका मिला। मुझे एक्चुअली वो मौका आज तक भी नहीं मिला था जो ऑन पैसिव ने मुझे दिया, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो इसके लिए तो मैं लॉट्स ऑफ थैंक्स बोलता हूँ ऐश को कि मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी बात बिल्कुल मुशर्रफ सही है, मगर आपके इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट बंदे सब नहीं होते ना। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास इंडिया में बिल्कुल बिल्कुल मैम योगी, मैं तो यही आप एक मिनट सुनिए। आप खुद ब खुद 2 घंटे में आपने पूरी ऑन पैसिव सुन ली। भाई ये तो मैं कभी नहीं बोल सकती, पता है क्यों? मुझे हमेशा ये लगता है कि ऑन पैसिव ये समुंदर की गहराई जैसी है। कितना भी आप सीखो, वो कभी 2 घंटे में 3 घंटे में आपको कभी नहीं समझ सकती। जितना सीखोगे उतना आप सीखते ही चले जाते हो, आपको और बड़ा, और उसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। ऐश का दिमाग भी वैसे ही है। ऐश सर क्या सोच रहे हैं उसके फुट हो गया। समझ ही नहीं सकती, इतनी बातें वो है। मगर आपका स्मार्टनेस है, आपका इंटेलिजेंस है, जो कि आपने किसी की हेल्प के बगैर आपने इतना कुछ जान लिया। सो वो आपकी बात है, आप उतना स्मार्ट हो, हम उतने स्मार्ट नहीं है, हम बस सादे सुधे इंसान हैं। मुशर्रफ के कहने का मकसद ये था कि जिन चीजों को हमें समझने में टाइम लगा, ऑन पैसिव को बेसिक बिल्कुल, वो उन्होंने पहले दिन ही समझ लिया। तो वो एक अगर आप वसीम भाई, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, मुझे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती, ना तो इनके जैसा मुझे कुछ समझता, ना तो मैं उतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अनाड़ी। मगर मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक ये आईटी इंडस्ट्री चलेगी, और जब तक आईटी इंडस्ट्री चलेगी तब तक मेरे वॉलेट में पैसा आएगा, बस खत्म बात। इतना ही बात। दूसरा कुछ भी नहीं मुझे समझ में आया। आई थिंक बिल्कुल योगी मैम, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट टाइम यानी कि मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद में तीसरे दिन मैंने ऐश को सुना था, दूसरे या तीसरे दिन। तो उस वक्त जब ऐश को सुना, इतना तो थोड़ा बहुत दिमाग है मुझ में,
कि जब पहली बार ऐश को सुना तो उस वक्त से उसी दिन से दिमाग से पैसा हट गया। 6 महीने के बाद में पैसा आने दो, साल भर के आने दो, 1.5 साल के बाद में आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐश जो बोल रहा है उसके ऊपर बिलीव किया, सीखते गए, सिखाते गए और आज आपके सामने है। तो ये चीजें दिल से करते हैं, अच्छी लगती है इसलिए करते हैं, बाकी कोई चीजें दिमाग में लाते नहीं। बस खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए मरते हैं और बस अपने फाउंडर्स के लिए जीते हैं, और कुछ नहीं। बस अभी मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, तो अभी थोड़ा मुझे 1-2 कॉल्स है, अर्जेंट है थोड़े से, तो यहाँ पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि आज आपने हमें मराठी लैंग्वेज में यहाँ पे मौका दिया। मैं और गंभीर जी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। मुकुंद जी आए, ममता जी आए, जो मराठी बोलता है सब आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं गंभीर जी को आपके ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, हमारे ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ये मौका दिया इसलिए 3 लैंग्वेजेस में। थैंक यू सो मच। तो बिंदु जी आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, थैंक यू योगिनी मैम। पेशेंस से सुन ले, और मेरे ख्याल में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो आपको शो कैसा लगा आप बताएं। आप अगर बंगाली में भी कहना चाहें कह सकते हैं। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো স্যার, হ্যালো। হ্যাঁ বলুন বলুন। হ্যাঁ বাংলায় বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সবার কথা শুনে সবাইকে প্রণাম করছি আমাদের বাঙালির পক্ষ থেকে। আর একটা জিনিস শেষে বুঝলাম, দ্য মোর উই লার্ন দ্য মোর উই আর্ন। যতই পড়িবে ততই শিখিবে, এবং শেখার কোনো শেষ নেই, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। একটা কথা শুধু বলবো যে আজকে যে ওয়েবিনারে ওয়াসিম স্যার এবং আমার মানে আইডল মোশাররফ হোসেন, আইটি সেক্টরের যে আইডল এবং ইউনিক ডাইনামিক লিডার, সবাইকে, এবং আজকে যেখানে আজকে মিটিং এ যারা যারা উপস্থিত ছিলেন, যারা শুনছেন সারা পৃথিবী জুড়ে, যদি কেউ অংশগ্রহণ করে থাকেন, সবাইকে আমার প্রণাম, ভালোবাসা। কিউকি উই আর অন প্যাসিভিয়ান, উই শ্যাল ওভারকাম সামডে। একদিন না একদিন ওই লাল সূর্য আমরা টাচ করবই। এটা আমাদের ড্রিম, এটা আমাদের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন আমরা প্রত্যেকে, সব ফাউন্ডার মিলে এনজয় করব। আর একটা জিনিস, এই যে 3 ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা 3 ল্যাঙ্গুয়েজ আগামীতে থাকবে না, 300 ল্যাঙ্গুয়েজ একসাথে আমরা কাজ করব। যেদিন অনপ্যাসিভ তার ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেট সফটওয়্যার নিয়ে আসবে, সেদিন শুধু মজা মজা মজা, আনন্দ আনন্দ আনন্দ। সেই আনন্দ আমরা বেটে নেব, ভাগ করে নেব। সারা পৃথিবীর হাজার হাজার জনজাতি মানুষ এবং আমাদের ও ফাউন্ডারের প্রত্যেক সদস্যদের সঙ্গে, কিউকি এস মুফারে স্যার আমাদের নেতা, আর সারা ওয়ার্ল্ডের যে লিডারগুলো আছে তারা সৈনিক, তারা সেনাপতি, এবং আমরা হচ্ছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈনিক। একটা সাইকেল, এস মুফারে সাইকেলের স্টিয়ারিং ধরে আছেন আপনারা যারা আছেন লিডার অল ওয়ার্ল্ডে, এবং এই আজকে প্যানেলিস্ট যারা আছেন সমস্ত লিডাররা, কেউ স্পোক, কেউ চেন কভার, কেউ হ্যান্ডেল। আমরা ভাল বা সাধারণ ধুলিকণা, যে সাইকেলটা চলছে সেই রাস্তাটা পরিষ্কার করার জন্য আমরা আছি। কারণ বাঙালি আপ্যায়ন প্রিয়, আমরা সবাইকে বাংলায় সমস্ত ফাউন্ডারদের, বিশ্বের সমস্ত ফাউন্ডারদের বাংলায় আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার শুভ হোক, ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক কেউ, কারণ আমরা আগামী দিনে এটা এনজয় করব, একসাথে এনজয় করব। এই কথা বলে সবাইকে প্রণাম, ভালোবাসা জানিয়ে ওভার টু আমার আইডল আমার आइडल मुशर्रफ हुसैन सर, नमस्ते सर। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। ऐश सर ने है ना, ऐश सर ने दुनिया की गरीबी मिटाने का काम लिया है, ये तो सबको मालूम है। तो 170 कंट्री में ऐश सर ने क्या किया मालूम है? 14 लाख मदर टेरेसा बना के रखा है। करेक्ट करेक्ट, ठीक ठीक ठीक। 14 लाख मदर टेरेसा बना के रखा है। जो गरीबी चल रही है ना, वो सब पूरा का पूरा उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल के रखा है। ऑन पैसिव एक सोल्यूशन है ना, वो मदर टेरेसा के रूप में निकलने जाने है। ये हम लोग है नहीं, मदर टेरेसा के हिसाब से काम करना चाहिए। तो 14 लाख मदर टेरेसा रहेगा ना, तो दुनिया में गरीबी नहीं रहेगी। ठीक 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 ठीक।
बराबर है सर। जरूर जरूर। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे ये इतना ही बताइए बोला। कि जिंद्री जी आप और सतविंदर जी, आप ऐसा शो आपको मिला होगा जहां आपको अपनी जुबान में, देखो अपनी जुबान में लैंग्वेज में बात करते हैं कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है, ठीक है, बंदा रिलैक्स भी होता है। जैसे आज बिलाल साहब काफी सराइकी में मुझे बड़े अच्छे लगे बात करते हुए। आज मैंने फर्स्ट टाइम सुना लैंग्वेज है सराइकी जहाँ पे रहते हैं। तो आई थिंक ये काफी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, पंजाबी भी है उधर, सराइकी भी है, उर्दू भी है। कोई इशू नहीं है। तो और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ आप ये जो लोग हैं, आप हमेशा हमारे चाहे वो शो का पार्ट हो या ना हो, ये बैक आइडियाज को आप ये ज्वाइन करें। और मैं आप लोगों से जरूर चाहूँगा हमेशा। और जितने भी जरूर सर, आपको जरूर। आपको योगिनी जी आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगी और वहाँ पे आई थिंक काफी जरूर सर, हो जरूर। गया है। सबको आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, मोहम्मद बिलाल भाई आपका शुक्रिया, और जिंद्रा भाई जी आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank- इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी शो और में। मुशर्रफ सर को मैं बेस्ट लक बोलूंगा, बहुत इंटेलिजेंट उसमें है। जी जी, मुशर्रफ सर के अंडर में बहुत इंटेलिजेंट छुपा है, इतना इंटेलिजेंट बहुत अच्छा लगता ये है। डायमंड है सर, हीरा है, हीरा है। हीरा है, डायमंड सही में। मैंने देखा हूँ ना, इतने बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं ना। मैंने पहला फॉलो किया था नीरज सर को, सबसे पहला उनको देखते हुए मैंने इतना बड़ा टीम बनाया। लेकिन मुशर्रफ टीम भाई आप चैंपियन में ये बताइए कि किसको आपको जो पहले वेबिनार्स वगैरह थे वो कहाँ हुए थे? टीम मेरे चैंपियन ख्याल का एक्चुअली मैंने जो हमारे अपलाइन थे उन्होंने कहा था क्लास 2021 में, क्योंकि मैं एक साल तक लोगों का मतलब वो कहते हैं ना इनडायरेक्टली हेल्प करता था, पर कभी सामने नहीं आया था एक साल फ्रेंड की तक। बात कर रहा था वो, आप बट पाकिस्तानी वेबिनार में आए थे, मैं वो बात कर। करंट में, जी बिल्कुल, पहले आपके इसमें था क्योंकि आपसे कांटेक्ट हुआ था एज अ फेसबुक, क्योंकि हमारे साथ काफी सारे इंटरनेशनल मैं लीडर से सबसे कनेक्टेड था, मगर मैं कभी भी सामने नहीं आता था। बट आपके सेशन के बाद ही मैं इंडिया पे आया हूँ, और उसके बाद से सारी चीज़ों को, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप उन चीज़ को आप पाना चाहो, या किसी भी आप डेडिकेशन के साथ आप करना चाहो, आई थिंक आपको उस जगह पे पहुंचने पे कोई रोक नहीं सकता है। तो सर, डेफिनेटली मेरा जो एक स्टेज है। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा। इस 2 महीने में है ना, लगभग 150 फाउंडर, पेंडिंग फाउंडर, मेरे टीम में एक भी पेंडिंग फाउंडर नहीं है, एक भी नहीं है पेंडिंग फाउंडर। क्या बात है। लगभग 100 से 150 लोग मैंने किनको किनको दिए मेरे को नहीं पता, लेकिन पेंडिंग फाउंडर क्लियर करके दे दिए, जिसको चाहिए उसको दे दिया पेंडिंग फाउंडर का। क्या बात मेरे है, टीम क्या में एक भी नहीं है, 150 क्या लोगों को बाहर ही दे दिया, हर एक क्या को, बात है। किसी देखिए को ये 5, किसी कैप्टन, को ये 10। कैप्टन है ना, देखिए हम एक जज्बे के साथ ये ऑन पैसिव को बिजनेस की तरह नहीं ले रहे लोग। नहीं लोगों नहीं में पॉजिटिव चेंज आई है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। हम देखो एक यूनिटी का एक माहौल है एक। और अगर आप मुशर्रफ को याद हो कि जब हम फर्स्ट टाइम मुशर्रफ अचानक आए थे हमारे वेबिनार में, तो मैंने जानता नहीं था। मैंने एक थोड़ी सी टेक्निकल बात की थी, मुशर्रफ ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो मैंने उस वक्त मुशर्रफ को मैंने कहा मैं आपको अलहदा से एक सेशन पे बुलाऊंगा, आपको याद होगा। तो उसके बाद हमारे 2 जी सेशन, बिल्कुल। एक डाटा सेंटर के बारे में हुआ था, दूसरा सेशन हुआ था आई थिंक मार्केटिंग कैंपेन के बारे में। तो वो अभी भी मेरे जी जी ध्यान में बिल्कुल। अभी तक रिकॉर्ड है। आप कभी उन पैसे और पाकिस्तान। एक्चुअली मुझे मार्केटिंग कैंपेनिंग का जो ये था ना, क्योंकि बेसिकली मैं अपना जब बिजनेस रन कर रहा था ऑन पैसिव, सॉरी ऑनलाइन पे, हमारी खुद की कंपनी जब मैं रन कर रहा था 2016 पे, तो मुझे काफ़ी सारा प्रॉब्लम उस टाइम पे फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारा नॉलेज बिल्ड हुआ कि ये मार्केटिंग कैंपेनिंग और ट्रैफिक और ये बहुत सारी चीज़ कहाँ से कलेक्ट करना है, किस तरह से इनको बिल्ड करना है, और किन किन सेक्टर पे मुझे जाकर के मतलब कैसे टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप करना है। क्योंकि एक मैंने जो अपनी वेबसाइट बिल्ड की थी, एक फ्रेंड था वो मेरा जर्मनी का, तो उन्होंने वो जर्मनी कंपनी पे वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट रेडी करता था, मतलब कि वेबसाइट डिज़ाइनर था। तो उन्होंने कहा था सर मैं ऐसा कुछ वेबसाइट आपको बना रहा हूँ जिसमें से आपको मतलब एक यूनिक थिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जो आज की डेट में जो वेबसाइट बिल्ड होता है ना, तो उस टाइम पे मैंने उन चीज़ों को बहुत डीपली फॉलो किया था, और वो वेबसाइट काफ़ी हाईली एक्सपेंसिव था मेरे लिए। 2016 में मैं एक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए
सिर्फ 1,60,000 रुपीज पे किया था सिर्फ वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। तो उस टाइम में इंडियन INR पे बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि एक नॉर्मली ई-कॉमर्स वेबसाइट आप बनाते हैं तो डिफरेंट इसमें, तो मेरे लिए सिर्फ वेबसाइट बिल्ड करना प्लस उसमें बहुत सारे ऐसी चीज इंक्लूड था, अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज मेरा एक्सपेंड हुआ था सिर्फ एक कंपनी स्टार्ट करके वेबसाइट ऑनलाइन के लिए। तो आई थिंक वो जो डिफरेंट है अभी मैंने देखा है ऑन पैसिव में, कि डे बाय डे जब हमें वेबसाइट मिलता है डिफरेंट डिजाइन होकर के और इतना फास्ट एंड इजी वे से, तो आप एक फील करो कि मतलब कि आपको जब कस्टमर हमारे यहाँ पे आएंगे और कस्टमर को डे बाय डे मतलब विद इन अ मिनट, अगर मैं कह रहा हूँ आवर भी नहीं, विद इन अ मिनट यू कैन क्रिएट अ ई-कॉमर्स वेबसाइट। इस लेवल का टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि जो मुझे एक वेबसाइट बिल्ड करने में काफी सारा पैसा एक्सपेंड हुआ था और इतना एक्सपेंसिव था और टाइम भी काफी लगा था, आज की डेट में AI टेक्नोलॉजी वो फैसिलिटी वो सिस्टम प्रोवाइड करने वाली है जो विद इन अ 40 मिनट के अंदर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट को बिल्ड कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि किस लेवल का ऑन पैसिव अपनी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक तो कुछ 4 चीजें लाख ऐसे होती है ना कि आपके माइंड। सर आपने जी 4 सर। लाख रुपए डाला ना, अभी वेबसाइट बना के 4 लाख नहीं 4 करोड़ नहीं 4 अरब कमाओगे क्योंकि वेबसाइट बनाने का भी बिल्कुल पैसा बिल्कुल कमाओगे ना सर, मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ सर कि 2016 से 2018 में मेरा वेबसाइट वगैरह सब पूरा खत्म हो गया, मतलब फिनिश्ड हो गया। बिजनेस में काफी मेरा लॉसेस हुआ क्योंकि इंडिया का आप जानते हो कि जब डिमोनेटाइजेशन आया, मतलब कि उस टाइम के बाद GST आया, मतलब उस टाइम में जब हम लोग काम कर रहे थे ना, तो मैं 12 साल से अराउंड डिजिटल करेंसी पे मैं इन्वॉल्व हूँ एज अ रिसर्चर फॉर द डिजिटल करेंसी। तो मेरा उसका जो एक इन्वॉल्वमेंट था, उसका जो एक बेनिफिट था, वहां से कन्वर्ट होकर के इंडिया में बिजनेस करना और पूरा मूव करना बैलेंस को, जो मैंने वहां पे सोर्स ऑफ इनकम मेरा था, तो उस बैलेंस को मूव करना मेरे लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था। क्योंकि वो चीज को आज की डेट में अगर वहां पे मैं अगर फिक्स रखता एटलीस्ट 50% भी, आई होप आज की डेट में वो 50 CR से प्लस होता है इंडियन INR पे अरे सिर्फ विद इन अ 4 years। तो मेरा इतना ह्यूज डिफरेंट, मेरा इतना बड़ा लॉसेस हुआ है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट आई हैव अ कॉन्फिडेंस, मुझे ये चीज का बहुत अच्छा लगा कि कोई चीज अगर लॉसेस होता है ना, तो आपको एक्सपीरियंस गेन होता है और डिफरेंट दूसरी चीज कि आपको आगे के लिए क्या प्रिपेयर करना है और क्या प्लेटफॉर्म आप चूज किए हो, वो ज्यादा डिपेंड कर रहा है। तो मुझे राइट प्लेटफॉर्म मिला, भले से थोड़ा सा टाइम लगा, बट आने वाला टाइम ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज से डिमोटिवेट होता हूँ या ऐसा, मुझे और अच्छा लगता है कि बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये जो 4 years जो मेरा था। और ये 2 years तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि ऑन पैसिव से क्या मिला है, नॉट एक्सप्लेन। आई बहुत थिंक अच्छी चीज। मुशर्रफ, आज का शो तो आई थिंक इतना लंबा हो गया है और बहुत, और शो के बाद का जो रिव्यू सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। मेरा ख्याल में इसको 2 पार्ट में मुझे पब्लिक करना पड़ेगा, एक ऑन पैसिव जो 3 लैंग्वेजेस वाला और दूसरा रिव्यू सेशन। क्या ख्याल है? और सही में बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि आज वो वाली गुफ्तगू भी बहुत मज़ा आया जो पहले सेशन था, और ये वाली गुफ्तगू में एक इंफॉर्मेटिव सेशन रहा और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। योगरी जी ने बहुत अच्छी बातें की, यहाँ पे सुब्रद्रु जी ने और जयेंद्र जी ने, और काफ़ी अच्छे मोटिव के साथ सब चल रहे हैं, एक पॉजिटिव विजन के साथ चल रहे हैं। और आई थिंक एक बिजनेस में अगर विजन ना हो और पॉजिटिविटी ना हो तो वो आगे मूव ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, इससे पहले जितने भी बिजनेस थे वो मॉडल फेल इसलिए हुए, वो सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट के लिए थे। यहाँ पर हम देखेंगे, हम एक आपस में फैमिली की तरह रहते हैं, एक एक पर्सनल बेनिफिट नहीं देखते, म्यूचुअल बेनिफिट की देखते हैं। देखिए, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमें कंपनी अभी 1 रुपया नहीं दे रही है और हम टाइम दे रहे हैं कंपनी को, और दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए आईडी बना रहे हैं। जैसे कि जितेंद्र जी ने कहा, हर गांव में आईडी बनाया, इतने आईडी बने, किसी को फ्री में दे दिया। बिलाल भाई है यहाँ पर, उन्होंने वो ऑलरेडी स्कूल की एजुकेशन का कर रहे हैं, 30% उनकी एजुकेशन फ्री है। तो कहीं ना कहीं हम में ये ख्वाहिश होती है कि हम लोगों के लिए कुछ करें, लेकिन हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से वो कर नहीं पाते। आई थिंक ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा।
और इंशाल्लाह हम जो है वी आर सो इन इट टू विन इट जो वाला वर्ड है हम बहुत जल्द देखने वाले हैं और एप्पल बहुत जल्दी खाने वाले हैं और अक्टूबर और नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। थैंक यू वेरी मच आपका। और एक सो इन इट टू विन इट के साथ हम ये सेशन खत्म So in it to win it. Joy and So in passion. it to win it. So in it to win it.